ठीक है। लास्ट क्लास वी आर स्टडिंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन में वी आर फाइंडिंग द बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर बिफोर क्लोजिंग द स्विच एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और वी कैन सी द टाइम इंस्टेंटेनियस चेंज, हाउ द सिस्टम इज चेंजिंग इंस्टेंटेनियस। तो टाइम रिस्पॉन्स को हमने देखा था, उसको हम और आगे बढ़ते हैं। टुडे वी विल सी द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट, टाइम के साथ वो कैसे बिहेव करता है। वी आर नॉट फाइंड द टाइम रिस्पॉन्स, टाइम के साथ कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, एंड हाउ द इंडक्टर विल बिहेव, हाउ द कैपेसिटर विल बिहेव, हाउ द रेजिस्टेंस विल बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड टाइम के साथ कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, दैट वी विल सी राइट नाउ। Simple, अगर if there is a RL circuit, if there is a simple RL circuit, so how the RL circuit will be? I hope so. There is a prerequisite for studying this topic, time response. You should know differentials, how to solve the differential equation by general method and second Laplace transform method. तो Laplace transform method से भी आपको अगर differential equation solve करना आता है तो भी हम time response निकाल सकते हैं, current response, voltage response निकाल सकते हैं. We should know. I hope so. Everybody knows how to solve a differential equation. First order differential equation, particular integral निकालना है, complementary function निकालना, वो आना चाहिए. And second requisite is, if you know Laplace transform, तो Laplace transform is more easier than conventional method. तो Laplace transform method से भी आप निकाल. I hope so. Everybody know Laplace transform. Laplace transform का भी application होता है. Because in mathematics you are studying Laplace transform and applying in electrical engineering. So how to apply Laplace transform in electrical engineering? So our main aim is to study time response. Initial conditions we already studied, behave कैसे होता है. उसके आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा. उसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स विल टेक 1 or 2 न्यूमेरिकल लेटर ऑन. हाउ टू फाइंड i of 0 di by dt, d2i by dt square. ये सब चीजें जो थी, these all comes under initial condition. Now we are going to study the time response. कि टाइम के साथ कैसे बिहेव करता है. सिंपल सपोज कि RL सर्किट, okay, we'll see the simple RL circuit. Okay. What will be the time response of RL circuit? This is position 1 and this is position 2. तो टाइम रिस्पॉन्स कैसे देखना है. इनिशियली हम मानते हैं कि इट इज एट पोजीशन 2. पोजीशन 2 में तो कोई एक्साइटेशन नहीं है,
थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन. अगर आप वन क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए, आप समझ गए, यू कैन सॉल्व एनी एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो इसको सोचने की कोशिश करो. इनिशियली सपोज ये पोजीशन 2 में है. इनिशियली अगर पोजीशन 2 में है, इनिशियली पोजीशन 2 में है, नो करंट, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 माइनस, सब करंट वोल्टेज सब 0 है, सर्किट एक्साइटेड नहीं है, तो कुछ भी नहीं है. आई कैन राइट आई ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0. ठीक है, इंडक्टर. एंड आई इज इक्वल टू 0 प्लस. 0 प्लस में हमने स्विच को पोजीशन 1 में ले गया, तो आई इज इक्वल टू 0 प्लस भी 0 ही होगा. ठीक है, ये कंडीशन को आप समझने की कोशिश करो. बिकॉज द सर्किट इज इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. स्विच ऑन करने से पहले, स्विच ऑन करने से पहले करंट थ्रू इंडक्टर 0 था, तो स्विच ऑन करने के बाद भी करंट 0 ही रहेगा. तो आई ऑफ 0 माइनस एंड 0 प्लस, these are the two instants. 0 minus switch at position 2, 0 plus switch is at position 1. In the both the cases, current through the inductor is 0. एक condition. Now we can write a Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law at this instant. This instant में हम Kirchhoff current law. So we will apply the Kirchhoff current law. V is equal to IR plus L di by dt. V is equal to IR plus L di by dt. This is the current I. What do you mean by time response? The question arises, what do you mean by time response? Time response means you have to plot a time curve, or you have to plot a current curve or voltage curve with respect to time. Means time response means time response of current. How current behaves with respect to time. So there is a time axis and there is a current axis, time axis or voltage. So time response with respect to time, what is the response or how current behaves is called as time response. हमको time निकालना है और we have to find I of t with respect to t. हमें I निकालना है with respect to time, function of time. That is called as time response. तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. V इज इक्वल टू IR प्लस L di by dt. तो दो मेथड है इसके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की. एक मेथड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अगर नहीं आता है तो आप बुक्स खोलो फर्स्ट ईयर की बुक्स में होगा, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ, हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड आई. और अभी मैथमेटिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व. देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. वन मेथड इज क्लासिकल मेथड, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड CF निकाल के CF प्लस PI निकाल के करते हैं. एंड सेकेंड मेथड इज लाप्लास. तो हम दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लिख लिया है. इनिशियली क्या है पोजीशन 2 में था, फिर 2 से 1 में गया. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? इन जनरल अगर आप लिखोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो आप कैसे लिखोगे? di by dt प्लस R by Li is equal to V by. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. di by dt प्लस R by Li, this is I, R by Li plus is equal to V by. This is a standard form of differential equation.
इसमें जनरली ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा m प्लस आर बाय एल इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू माइनस आर बाय। रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन di by dt प्लस r by l आई है ना, तो इसका m प्लस r by l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू, तो दीज आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। एंड फिर सेकेंड पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट होता है द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म? इन जनरल I of t is equal to complementary function plus pi। जो क्लासिकल मेथड है जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, एंड इट मेथड वी फाइंड I of t is equal to complementary function plus particular integral। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? हाउ विल यू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? m इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल है, तो दो पार्ट हो जाएंगे, I of complementary plus I of particular। I of complementary function I of ct क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस माइनस आर बाय एल, क्या हो जाएगा a e टू पावर माइनस आर बाय एल टी। ये आपने देखा होगा कि अगर दो रूट है तो दो फंक्शन आ जाएंगे, एक रूट है तो एक ही आएगा, तो a e टू पावर माइनस आर बाय एल टी। This is the complementary function of type this। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको ये सेकेंडरी साइड का निकालना पड़ेगा, इस साइड का पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अगर ईमानदारी से पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, तो आप निकाल सकते हो। अदरवाइज आप मैथमेटिक्स के टीचर से भी पूछ सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। To solve any differential equation, there is one method which is called as complementary function plus particular integral। complementary function method आप देखो बुक में, फिर particular integral method देखो, दोनों सॉल्यूशन निकल जाएंगे तो आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड में क्या करते हैं हम, b by l, इस पार्ट का b by l का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। एंड इसमें क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन क्या है, m प्लस आर बाय। So to find particular integral, you need b by l का आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है आपका m प्लस आर बाय एल, m को हम कई बार d लिखते हैं, d प्लस आर बाय एल। दिस इज d प्लस आर बाय एल इज एक्चुअली योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। d प्लस, एक्चुअली ये फॉर्म क्या हो रहा है, d प्लस आर बाय एल आई, ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है d प्लस आर बाय एल। इसको आप v बाय एल निकालोगे और उसकी मेथड से निकालोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो d को आपको इनिशियली 0 रखना पड़ेगा, तो d को 0 रखोगे तो pi क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि रूट्स क्या है आपके माइनस आर बाय एल माइनस, तो d को आप 0 रखोगे, रूट क्या हो जाएगा r बाय एल 1 बाय एल, तो फाइनली हो जाएगा r pi इज इक्वल टू v बाय। तो p बाय i पर्टिकुलर इंटीग्रल इज कमिंग v बाय r। अब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर यू विल गेट, सी केयरफुली, I of t इज इक्वल टू a e टू पावर माइनस r बाय l t प्लस final equation is I of t is equal to a e to power minus r by l t plus v by l। This is the time response equation of after switching। वन पोजीशन में जैसे आपने सडनली स्विच किया तो क्या विथ इनिशियल कंडीशन 0 दिया है, अगर 0 नहीं रहता तो भी हो जाता। इसको बहुत केयरफुली दे दो। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको
एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे हम निकाल देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ए है, तो कांस्टेंट ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन पुट करना पड़ेगा। एट टी इज इक्वल टू 0, आई ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो 0 इज इक्वल टू a e टू पावर माइनस r बाय l इंटू 0 प्लस b बाय। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस b बाय। तो a की वैल्यू भी सॉल्व हो गई। Once you solve the value for a, you will get a is equal to minus b by r, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 0 रखे, e टू पावर 0 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू माइनस v बाय r। एंड i ऑफ 0 प्लस हमारे पास a इज इक्वल टू 0 0 हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस a बिकम्स माइनस v बाय r, तो फाइनली i ऑफ t क्या हो जाएगा, माइनस v बाय r e टू पावर माइनस r बाय l t प्लस v बाय, और आई कैन से i ऑफ t इज इक्वल टू v by r कॉमन ले रहा हूं, 1 माइनस e टू पावर माइनस, this is the final solution of RL circuit when it is not excited. एक्साइटेशन 0 था, एक्साइटेशन 0 में आपने जैसे स्विचिंग एक्शन किए, as soon as you give the switching action, you will get I of t as, थोड़ा सा आपको you have to observe it very carefully. current I of t is coming v by r 1 minus e to power minus r by l. This is a standard solution of current after key is placed from 2 to 1. This is called as time response of current. Time response of current. करंट का हम टाइम रिस्पॉन्स, टाइम के साथ करंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो देख रहे हैं। दिस इज अ टाइम रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ करंट। दिस इज द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ करंट। I of t is equal to v by r 1 minus e to power minus r by l. अब you can draw the response in graph. इसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। 1 minus e to power minus r by l आपको सबको पता है, इसका बिहेवियर कैसे है, how will it behave, इस कर्व कैसे आएगा, एनीबॉडी, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, एट t इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 तो स्टार्ट 0 से हो रहा है, एंड एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी v बाय r, ये ऐसे धीरे धीरे for inductor the curve is like this. Anybody having any doubt or queries पूछ लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, you should know the differential equation, you should substitute the values of t and you can plot. So this is called as time response. तो हमने RL सर्किट का टाइम रिस्पॉन्स दिया, तो करंट थ्रू इंडक्टर इंक्रीजेस at t is equal to infinity, inductor act as a short circuit, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इनफैक्ट as a short circuit means current becomes constant, करंट क्या हो जाएगा v बाय। जो हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं वो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। at t is equal to 0, inductor act as open circuit, करंट 0 है। at t is equal to infinite, inductor act as a short circuit, current is maximum v by r, inductor short।
Same statement I am repeating in this also. At t is equal to 0, current is 0, I is equal to 0, open circuit. At t is equal to infinity, inductor is short circuit, current is 3 pi. तो यह है सब. एक पॉइंट और आएगा आपका. There is one point at t is equal to L by R. At t is equal to L by R. तो एक पोजीशन होगा ना कि ये आपका E बन जाएगा. T अगर L by R हो गया, एल एल कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, e टू पावर -1 और 1 माइनस हो जाएगा. This is called the time constant of the cell. एक टाइम है, देयर इज ए वन टाइम एट t इज इक्वल टू L by R. अगर t की वैल्यू L by R रखेंगे तो e टू पावर -1 हो जाएगा. तो इसको हम सॉल्व करते हैं, t इज इक्वल टू L by R हो जाएगा. ये 0.63 63% होता है. तो ये यहाँ पे ठीक है. 63% राइज. This is called as, what we call it as, this is called as the time constant of the circuit. Exponentially वो 63% of rise हो रहा one time constant में. This is called as time constant of circuit. We call it as T is equal to L by R. Called as time constant. This is called as time constant of the circuit. Okay, how will you define the time constant? Time constant of circuit is defined as, time constant of the circuit is defined as time taken by, time constant of circuit is defined as time taken by a current to rise from 0 to 63% of 0 to 63% of final value of current is called as time constant of the circuit. Okay? It's called as time constant of the circuit. ये बहुत important है. You can write down time constant of the circuit. It is a time required by a current to rise from 0 to 63%, 63.3% of final value of current is called as time constant. तो हर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कुछ होता है. RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट इज L by R. RC सर्किट का आप देखोगे तो RC टाइम कांस्टेंट है. The variation of current with time is shown in the figure. It is already shown in the figure. ये आपको पता रहना चाहिए. This is actually a time response of simple RL circuit. सिंपल RL सर्किट का टाइम रिस्पॉन्स. इसको आप डिफरेंशियल इससे भी सॉल्व कर सकते हो. इससे यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड आल्सो. मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे. टेकिंग लाप्लास, मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूं. ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. अगर आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आई डोंट नो आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई डोंट नो. अगर आपने पढ़ लिया तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, विल चेक टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा.
एस आई ऑफ एस माइनस इनिशियल करंट आई ऑफ जीरो होता है प्लस आर बाय एल आई ऑफ एस इज इक्वल टू कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 बाय एस। ठीक है, दिस आई ऑफ जीरो प्लस इज जीरो, तो इसको आप छोड़ दो सीधा, बचता क्या है एस प्लस आर बाय एल आई ऑफ एस इज इक्वल टू वी बाय एस। दिस इज द सेकंड मेथड, सी केयरफुली। तो आई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ब्रेक करो दो पार्ट में, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आप ए और बी कांस्टेंट्स निकालो, ए एंड बी कांस्टेंट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू मिलेगी आपको बी बाय आर, बी की वैल्यू मिलेगी माइनस बी बाय आर। ये सब्स्टिट्यूट करो, when you substitute this you will get v by r by s plus minus v by r by s plus। फिर लाप्लास इनवर्स लोगे तो आई ऑफ टी क्या मिलेगा, 1 बाय एस का लाप्लास इनवर्स 1 और इसका माइनस, देखो वही सॉल्यूशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजी लगता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से करो, या क्लासिकल मेथड अगर इजी लगता है तो क्लासिकल। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, अगर पढ़ा होगा तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द टू मेथड्स टू फाइंड द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ आरएल सर्किट। ठीक है, तो ये दोनों ये क्वेश्चंस को आप कई बार सॉल्व करके देखो और पेपर में, और इसको समझो, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वी बाय आर क्या होता है, ये क्या होता है, फिर आपको समझो करंट फ्लो इंडक्टर क्या होगा, ऐसे। तो फाइनल वी आर वैल्यू जाने के लिए उसको 3-4 टाइम कांस्टेंट लगते हैं। ठीक है, एंड वन टाइम कांस्टेंट इज you can solve this differential equation by Laplace transform method as well as ordinary differential equation methods जो है आपके classical, which you already studied in this mathematics, that method also. Anybody having any doubt or queries, you can ask me. अगर किसी को doubt और queries है तो पूछ सकता है, but do practice of this। ठीक है, क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, कुछ पूछा जाएगा, निकालने तो आना चाहिए। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और क्यूरीज? ठीक, टुडे आई विल टेक लैब क्लास आल्सो। अगर लैब क्लास लेना रहेगा तो मैं आई विल सेंड यू लिंक हाफ एन आवर बिफोर। ओके, 3 बजे वगैरह अगर लैब क्लास लेंगे तो आई विल सेंड यू अ लिंक। ओके, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट क्यूरीज, यू कैन आस्क मी। That's all from me.